Welcome back, dear student. Now you have to perform the experiment. So this is the lecture number 2, or you can call it a part B. And two of my research scholars, Mr. Abhishek Katendra and Dr. Richa Tembekar, will also help you. And my another student, Ms. Angel Minj, will also be there. So the title is almost same, but during the experiment, you have to use the sodium dodecyl sulfate, SDS. And yesterday I told you how to prepare I think you have prepared 8 to 10 solutions. And you will use this instrument. And please come with me to my research laboratory and start the experiment. Please come with me. So good morning. Today we will perform a very simple but important experiment of MSc first semester physical chemistry student. The simple experiment is the determination of critical micelle concentration, which is known as CMC, of surfactant. So what I am planning, because there are 30 students in first semester batch A, and there are many surfactants are available in our laboratory. So some student will perform, or some student will take cationic surfactant. And you know that most common surfactant easily available is cetyl trimethyl ammonium bromide, that is CTAB. And it is a cationic surfactant. So two research scholars are with me. One is Richa Tembekar, another is, you please come here, Mr. Abhishek Katendra. So I will instruct them that one group will do the CTAB and another group will do the determination of CMC of sodium dodecyl sulfate, which is very common surfactant, you know. That is a different is that it is, one is cationic and another is the anionic. But it is again very easily available, and you can see that because large number of students and research scholars are doing, so we have taken a very large amount of sodium lauryl sulfate or sodium dodecyl sulfate, because it is a very common surfactant. Now why I have taken these two different surfactants? Because the CMC of this, I am not talking about the standard CMC, is 1 millimole, that CTAB. And sodium dodecyl sulfate is I think approximately 8 millimole. And the molecular weight of sodium dodecyl sulfate is 288, because the MSc students have already prepared the solution. I will show you when we perform the experiment. And the molecular weight of CTAB is also given here. And you see that it is 364 approximately. And because research scholars, they are also doing some research work related to surfactants. So you see the quality of that surfactant, it is sigma L rich, so very high quality. And it is also Molichem chemicals, and it is, you know, that Fisher Scientific. So all the chemicals are very good quality. And as I told you that I have divided into two parts. The first part which you have to refer, because जब हम कोई एक्सपेरिमेंट को करते हैं, चाहे वो MSc का या BSc,
the student must know the theory of that experiment. तो मेरा जो इस लेक्चर का पहला पार्ट है जिसमें मैंने डिटेल्स बहुत संक्षेप में इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स बताया हूँ, और जो सेकंड पार्ट है उसमें स्टूडेंट से इसको एक्सपेरिमेंट कराएंगे. नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ़ यू सी द लिटरेचर, क्योंकि आप जो एमएससी के स्टूडेंट हैं, आप लोग बीएससी करके आए हैं, और बीएससी में सरफेस टेंशन निकालना बहुत आवश्यक होता है. एंड देयर आर मेनी मेथड्स जिससे आप सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं. एंड मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड, आपने अगर मेरा थ्योरी वाले पे लेक्चर में आप जरूर देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता देना चाहता हूँ कि जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं या स्कूल में हैं, उसमें ट्रॉबे स्टैल्गमोमीटर यूज़ किया जाता है. एंड इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी चीप, बट यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन, और आप इसको निकालते भी है बीएससी में, जिसको हम लोग ड्रॉप वेट मेथड बोलते हैं. इसमें कैपिलरी है और कोई भी लिक्विड हम लेते हैं एंड वी डिटरमाइन द ड्रॉप वेट मेथड. बट यू नो दैट वी मस्ट टेक ए स्टैंड, सो देयर नो डिस्टॉर्शन, तो उसको हम लोग स्टैंड से निकालते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, इसमें आपको डेंसिटी भी निकालना पड़ता है. सपोज यू हैव प्रिपेयर डिफरेंट सोल्यूशन, सो इट इज़ कॉल्ड द पिक्नोमीटर. और ये बीएससी में भी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं. हम डेंसिटी निकालते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिनते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल फार्मूला. मेरे फर्स्ट लेक्चर में आप उसको देखेंगे. बट फॉर्चुनेटली दिस इज स्कूल ऑफ स्टडीज इन केमिस्ट्री, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, and we are fortunate enough that we are having a very very sophisticated equipment that is called the tensiometer. बट आप देख रहे हैं कि हम स्टूडेंट को भी इस टेंसियोमीटर को देते हैं. बट अगर आपको, इफ़ यू वांट टू लर्न द थ्योरी एंड अदर थिंग्स, यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. सो टुडे आई एम यूजिंग यू सी दैट इज ए ऑटोमेटिक surface tensiometer, and the company is Kayo, and the model is DY300, and it is computer operated tensiometer, and you can directly measure the, suppose you have prepared 5 or 6 solution, so you can directly measure the surface tension. What is the unit of surface tension? बताइए. हाँ, न्यूटन पर मीटर, दैट इज दी एसआई यूनिट. बट पहले हम लोग जब स्कूल में या कॉलेज में करते तो दैट इज डाइन पर सेंटीमीटर, बट हियर इट इज़ ए न्यूटन पर मीटर हम निकालेंगे. एंड देयर इज ए कंप्यूटर, सो आप इसमें ग्राफ भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट. हाँ, आप अगर डायरेक्ट सोल्यूशन ले लेंगे, और मैं अभी बताऊंगा उसका. दूसरा, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज दिस इंस्ट्रूमेंट was purchased by the grant of, it is written here, that is DST FEAST project. And you see today, now is 2025, आज 14th of October है, but we have purchased this instrument in 2017, and still it is nicely working. Research scholars भी इसमें काम करते हैं और MSc student भी काम करते हैं. It is a very costly equipment. You can compare this. Now we are having also another indigenous made equipment. हमारे पास इसका 2 मॉडल है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द UGC एंड CSIR. तो इस रिसर्च प्रोजेक्ट से हम इसको खरीदे थे. दैट इज़ ऑल्सो एक ऑटोमेटिक भी है और एक मैनुअल भी है. और ये दिस इज़ जेनकॉन मेड सरफेस टेंसियोमीटर. इसमें हम लोग ये देखेंगे, इसमें हम लोग डाइन पर सेंटीमीटर से निकालते हैं. बट दी थ्योरी इज सेम. थ्योरी के बारे में मैं इसलिए डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आप लोग उसको कर चुके हैं. अब आई एम कमिंग टू द डायरेक्ट मेथड. सो देयर आर surface tension, maybe there are 3 or 4 methods. You know that there is a capillary rise method, dropout method. But here, you just saw the platinum ring. There are 2 methods.
वन इज कॉल्ड, नहीं अलग से अगर प्लेटिनम रिंग है तो उसको दिखा सकते हैं। एक होता है विल्हेल्म में प्लेट मेथड, जिसमें हमने मान लीजिए लिक्विड लिया, उसमें चिमटा से दिखाइए तो यस सामने दिखाइए। सो इट इज़ ए, यू सी इट इज़ ए प्लेटिनम रिंग, बेसिकली प्लेटिनम रिंग, एंड इफ यू know the actual definition of the surface tension, force acting per unit length, तो इस प्लेटिनम रिंग को हम लोगों ने सबसे पहले स्प्लिट लैम्प से इसको क्लियर करते थे, क्लीनिंग ऑफ दैट प्लेटिनम रिंग। देन विल टेक ए बीकर एंड विल टेक सोल्यूशन। अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं पहले समझा देता हूँ थ्योरी। एंड ग्रेजुअली प्लेटिनम रिंग को हम उसके पास में ले जाते हैं, लिक्विड के पास, तो जस्ट एट द सरफेस, बिकॉज वट एवर द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सरफेस, हम थ्योरी में हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देयर इज ए इनवर्ड पोल एंड अपवर्ड पुल, सो जैसे ये डी अटैच हो जाएगा दैट डायरेक्टली मेजर द सरफेस टेंशन, एंड देन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द surface tension and the concentrations. So there will be a break point, and that break point is the critical micelle concentration. And if you ask me, sir, what is critical micelle concentration? बताइए भाई रिचा, क्या होता है CMC? How do you define the CMC? Is the minimum concentration of that surfactant where surfactant form the micelle. As because we know the surface tension of वाटर इज अराउंड 72, अगर हम डाइन पर सेंटीमीटर से करेंगे, बट व्हेन वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सरफैक्टेंट, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि बिकॉज दिस होल वाटर सरफेस विल बी ग्रेजुअली कवर्ड बाय द सरफैक्टेंट। और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो जो सरफेस एक्टिव एजेंट है वो कंप्लीट माइसेल फॉर्मेशन हो जाएगा। सो देयर इज ए फ्लैट पोर्शन, और उस जगह में जो भी आपका आएगा वहाँ पे हम लोग सरफेस टेंशन निकालेंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि माय MSc स्टूडेंट्स, दे हैव ऑल प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इन वेरी गुड डिस्टिल वाटर में ये बनाए हैं। एंड अब इसमें एक सिद्धांत ये है कि सपोज आई एम यूजिंग दी सीटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, बिकॉज ये MSc के लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप रिसर्च करते हैं तो देयर में बी सम अननोन न्यू टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट, यू डू नॉट नो दी एक्चुअल CMC। सो व्हाट, आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई अननोन सर्फेक्टेंट मैंने आपको दे दिया, नया सर्फेक्टेंट दे दिया, तो उसको कैसे आप लोग निकालते हैं? हाँ, मतलब पहले आप उसकी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन बना लेते हैं, देन उसकी ग्राफ में जहाँ पे ब्रेक पॉइंट आता है। बट चूंकि ये MSc के स्टूडेंट इसको कर रहे हैं और हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ द CMC ऑफ CTAB एंड व्हाट इज़ द CMC ऑफ DSDS और एनी नोन सर्फेक्टेंट, तो नियम ये होता है कि सपोज इफ द CMC ऑफ सर्फेक्टेंट CTAB इज़ 1 मिलीमोल, तो हमको ऐसे कुछ सोल्यूशन बनाना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्री मिसलर रीजन एंड अदर द पोस्ट मिसलर रीजन। मतलब अगर हम जानते हैं कि 1 में वो ब्रेक पॉइंट है 1 मिलीमोल में, तो हम कुछ सोल्यूशन बनाएंगे कि जो 1 मिलीमोल से लो होगा, कुछ सोल्यूशन बनाएंगे जो 1 मिलीमोल से ज़्यादा होगा, फिर जहाँ पे हम लोग उसको मेजर करेंगे। और अगर बिकॉज टुडे आई एम टेकिंग दी सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, तो क्या क्या सोल्यूशन बनाया आप बताइए, अभिषेक बताइए, आप बताइए क्या सोल्यूशन बनाए हैं? जैसे कि जोर से बताइए कि CMC की वैल्यू 8 मिलीमोल के आसपास। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें स्टॉक सॉल्यूशन के थ्रू हमने 4 सीरीज ऊपर बनाया है, हाँ, कंसंट्रेशन वेरी गुड, नीचे सीरीज का बनाया हाँ। है। और किससे बनाया है आपने? माइक्रोपिपेट लिया क्या? हाँ सर, हाँ, मतलब एक ट्रू सोल्यूशन लिया। वेइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम सोल्यूशन ठीक नहीं बनाएंगे तो इसमें रिजल्ट सही नहीं आएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोग और कराते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताइए। मतलब इस CMC के साथ साथ एक और एक्सपेरिमेंट कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और उसमें बिकॉज देयर आर सम कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उसमें हम लोगों ने सरफेस एक्सेस, मिनिमम सरफेस एरिया भी हम लोग करते हैं। लेकिन अभी हम सबसे पहले तो सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट उसको हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। और ये बहुत सालों से, बिकॉज
in our department is a very well-known department for the surface chemistry research. So therefore, I'm also remembering the great surface chemist of our country, late Professor S.P. Maulik, because we are all associated with the Indian Society for Surface Science and Technology, and I'm very glad to tell to my student that there is a conference, that is the National Conference for Surfactant, Biocolloids and Emulsions, और आज से बहुत साल पहले we organized twice in this department. We also organized the workshop for Professor S.P. Maulik, Professor Animesh Rakshit, and all the leading scientists. They came here and they performed large number of simple experiment, microemulsion experiment for the student. तो आज हम केवल एसडीएस का आपके सामने करेंगे और बहुत सारे सोल्यूशन बनाए हैं, स्टूडेंट करेंगे. अभी हम आपको जस्ट सिंबॉलिक दिखाएंगे. पहले वाटर का निकालेंगे, उसके बाद जो ये देखिए आपने इसको दिखाइए अच्छे से कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छे सोल्यूशन बनाए हैं. एंड दीज आर दी सोल्यूशन. एटलीस्ट 10 solutions they have prepared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In order to get good result. आप 6 पॉइंट भी ग्राफ निकाल सकते हैं, बट as per the time convenience, and you see the computer so that there is a direct, you see the table को दिखाइए अच्छे से कि ग्राफ प्लॉटिंग भी डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिक टेंसियोमीटर. और सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, because sometimes surface tension as well as the CMC also temperature dependence. तो वो भी हमारे पास methodology है. We have a thermostat so that we can maintain the temperature. अगर हाई टेम्परेचर में आपको CMC, लेकिन फॉर MSc स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें कि हम लोग रूम टेम्परेचर में, सोल्यूशन भी रूम टेम्परेचर में बना हुआ है और इसमें भी तो ये डायरेक्टली अटैच है. तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आप क्या क्या स्टेप लेते हैं उसको आप स्टार्ट करें, बताइए. और इसको रिंग को भी अंदर जो प्लेटिनम रिंग दिख रहा है उसको बहुत वेरी वेरी केयरफुली हम उसको हैंडल करना है. देखिए हमने खोल दिया है, ये देखिए आपको प्लेटिनम रिंग दिख रहा है. और हाँ निकालिए, उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है. ये आप करेंगे क्या? अभी तो कर लिया था, कल किए थे आपने. ये सर वाटर का निकाला है. हाँ अच्छा, दिखाइए वाटर का. ये 71.58 इसमें आया था सर. हाँ चलिए, कहाँ पे है वैल्यू? मिली न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन. 71.58. Yes, it is almost right. Now you take one solution greater than, मतलब जो आप ऐसा लीजिए जो कि CMC से 8 मिलीमोल्स ऊपर है, और 2 लीजिए और 1-2 का लीजिए. फिर जब स्टूडेंट आएंगे फिर आप उसको करेंगे. चलिए दिखाइए कैसे कर रहे हैं, पहले दिखाइए कैसे. सबसे पहले हम लोग रिंग को प्लेटिनम, हाँ हाँ करिए इसको. वाई क्लीनिंग इज़ नेसेसरी, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कुछ हाँ इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगे. तो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट. स्टूडेंट को बताइए. उसके बाद फिर आप इसी इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकते हैं. हाँ ये देखिए हाँ करिए. यस, थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा क्या? हाँ बंद कर दीजिए इसको. यस, ये स्प्लिट लैंप है, ये प्यूरिफिकेशन हो गया है. और देखिए हम लोग प्लेटिनम रिंग को भी कितना क्लीन करके रखते हैं. ये देखिए प्लेटिनम रिंग रखने का ये बॉक्स है. अब ये देखिए दोनों में अंतर है. इसमें थोड़ा सा इसके लिए कौन सा ट्यूब यूज़ करते हैं? बीकर. ये बीकर किसके लिए करते हैं? इसके लिए. ये देखिए, ये अगर इस इंस्ट्रूमेंट में हम करेंगे तो ये इधर से दिखाइए. ये देखिए ये है यहाँ पे रखा, और ये यहाँ पे प्लेटिनम रिंग को रखेंगे. इसमें प्लेटिनम रिंग का देखिए ये अलग है. प्लेटिनम जस्ट यू टेक दी. सो मैं एक साथ दोनों मेथड को बताना चाहूँगा. फिर लगाइए इसको. नहीं लगाइए, हाथ से नहीं लगाना चाहिए. लगा लीजिए उसको.
और जहाँ वाटर का लग गया, हाँ वाटर डालिए उसमें, जस्ट वाटर डालिए जस्ट। पहले एक्चुअली वाटर डाल देना चाहिए, उसके बाद इसको, और बिल्कुल उसी लेवल में रखना है। चलिए पहले उसको कर लेते हैं इसको, चलिए ठीक है पहले उसको कर लेते हैं हम लोग। जस्ट यू टेक 2 or 3 solution and show the plot and other things। हाँ लगाइए, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट को कैसे करें, थोड़ा नज़दीक में करिए। हाँ लाइट इज, हाँ फॉर लीजिए। आपने क्या नहीं, न्यूटन, व्हाट इज द रिजल्ट वाटर का? 71.58 मिली न्यूटन। ऑलवेज रिमेंबर मिली न्यूटन, अदरवाइज न्यूटन में करेंगे तो 0.072 लाइक दैट है, मिली न्यूटन। हाँ स्टेबल होने दीजिए। अब देखिए उसको हमने धीरे धीरे उसके पास ले आएंगे ना वाटर में। करिए आप, करिए इसको रख दीजिए, इसको सामने लगा के आप करिए, इसको करिए, एक्सपेरिमेंट को करिए, एक एक्सपेरिमेंट को दिखाइए। यस क्या हुआ? नहीं क्या हो रहा है उसमें, नहीं हो रहा है क्या? हो गया? दिख रहा है ना ये इसको खोलना नहीं, जस्ट दिखाने के लिए, स्टूडेंट को दिखाने के लिए। लग गया ना उसमें, लगा है कि नहीं रिंग? हाँ हाँ चलिए अब देख रहे हैं ना रिंग का, यू सी द रिंग यहाँ पे वाटर का जो सरफेस है, इट जस्ट इमर्ज्ड ऑन दैट वाटर सरफेस। नाउ फोर्स, जिस फोर्स में जैसे हम ऑन करेंगे तो दैट फोर्स which detached from that will be the directly that force will, you see वहाँ पे दिखाइए हो रहा है करके, धीरे धीरे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए, रिजल्ट होने दीजिए। हाँ उसको दिखाइए जो, तो दैट फोर्स, जो दोनों का जो फोर्स है, एंड देन ऑटोमेटिकली देखिए ग्राफ भी प्लॉट हो गया। ये किसका है? ये वाटर का कर रहे हैं क्या? ये सैंपल कौन सा? सैंपल नंबर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 6.5। हाँ ठीक है दैट्स राइट। 31.06। ओके वेरी गुड। सो फर्स्ट इट इंडिकेट्स, सबसे पहला ये आपको इंडिकेट्स हो रहा है कि दैट द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, यू सी दैट 71.58 मिलीन्यूटन पर मीटर force acting in the right angle. Then when we add particular amount of surfactant, so one thing is clear that it is a surface active agent, that surface tension decrease हो जा रहा है। एक और ले लीजिए, फिर आप अपना एक्सपेरिमेंट करिएगा जब स्टूडेंट आएंगे स्टूडेंट के साथ। एंड दिस इज द इंस्ट्रक्शन मैनुअल व्हेनेवर वी परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट। तो मैं स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करता हूँ उसको मैनुअल को ज़रूर अच्छे से पढ़े, जो प्रैक्टिकल के जो बुक्स है उसको अच्छे से पढ़े और उसके बाद ही एक्सपेरिमेंट करें, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट, वी हैव टू फॉलो ऑल दोज थिंग्स। एंड फर्स्ट पार्ट में मैं पूरा इसका थ्योरी बताया हूँ कि इसके पीछे थ्योरी कौन सा है, कौन सा फोर्स है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ऑल्सो आई विल शो यू। अब एक दो का निकाल लीजिए। ओके सो देन यू कैन कंटिन्यू इट। देन वी विल प्लॉट भी एक दिखा दीजिएगा, पुराना कोई प्लॉट आपके पास है। फर्स्ट यू टेक 1 or 2 एंड देन यू शो ए प्लॉट दैट, डू यू हैव एनी प्लॉट इन दी, और ना पहले इसका निकाल लीजिए, कोई तो प्लॉट होगा आपके पास, उसको प्लॉट को दिखा दीजिएगा। SDS का नहीं, पहले आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, उसके बाद प्लॉट दिखाइए। देन सो एक निकाल लीजिए, देन कोई प्लॉट होगा। सो देयर इज ए सरफेस टेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे ब्रेक पॉइंट आएगा उस पॉइंट को आप CMC मानेंगे। हर बार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एनी वे कर लीजिए वेरी केयरफुली। और इसको फिर स्टूडेंट से करा दीजिएगा, इस इंस्ट्रूमेंट को से स्टूडेंट से करा दीजिएगा,
ठीक है, कम से कम वाटर का निकाल लीजिएगा 9%, बट हियर आपको इसको घुमाना पड़ेगा बार बार, एक ऑटोमेटिक भी है जिसमें है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, सो अब ग्रेजुअली वी आर taking different solution and measuring directly the surface tension. Then when we get all the surface tension value, then we will plot surface tension and concentration. तो एक प्लॉट भी आप जरूर दिखा दीजिए, और जब स्टूडेंट आएंगे स्टूडेंट के साथ आप ये भी करेंगे। ओके, सो दैट इज द पार्ट बी, और पार्ट ए जो है थोड़ी देर बाद हम उसको थ्योरी वाला पार्ट को करेंगे। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू।